हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन पालीवाल, रेजिडेंस फैकल्टी बायोलॉजी प्री मेडिकल डिवीज़न। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन दी ओवेरी आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाय। You know, there is NCERT line that wind pollinated flowers have wind pollinated flowers often have, important point है often have single ovule in each ovary and flowers are packed into inflorescence. So this is the NCERT line. So wind pollinated flowers are pollinated by wind. Okay, and this is the important point, often, not always, not all plants. This is example, a single ovule having plants, example, you know, cereal plants like wheat, maize, barley, etc. You know, these plants have single ovules. Okay, come to the next question. Dioecious flowering plant prevent both. Dioecious flowering plant, you know, majority of flowering plants have bisexual flowers, and some of the flowering plants have unisexual flowers. Okay, unisexual main flower, unisexual female flower. So if the flower is bisexual, it allows autogamy. You know, this is a type of pollination. Autogamy occurs in a same flower. Okay. Now come to the next point, unisexual flower. If a plant having both present on same plant, this is monoecious condition.
if both flowers present on different flowers, different plants, this is dioecious condition. So, now come to the first option, autogamy and xenogamy. Autogamy occurs in bisexual flower, but dioecious plant having either male flower or female flower. Okay. So, autogamy will be prevented in this plant, but xenogamy will occur between two different plants. Xenogamy occurs between two different plants. So, this is one plant and this is one plant. So, it will be not prevented. Come to the next option, autogamy and geitonogamy. Autogamy you know. Now, geitonogamy. Geitonogamy occurs between two different flowers on the same plant. Okay, and this is the condition monoecious. Here both type of flowers are not present on the same plant. Okay, so it will be prevented. So, answer will be second answer, autogamy and geitonogamy, both of these will be prevented in the condition of dioecious condition. Okay. Come to the next question. Attractants and rewards required for, you know, attractants and rewards are required for the biotic agents. Okay. And what are the biotic agents? Generally, majority of plants are pollinated by the insects. So, and the insect pollinated flowers pollination by insect is known as entomophily. This is entomophily. Okay. So, insects require attractants, flowers must be attractive, colorful and rewards like nectar, pollen grains, etc. So, these are the entomophilous flowers which produce rewards and these are attractive flowers. So, entomophily is the correct answer. Anemophily is wind by wind, pollination by wind. Hydrophily by water, and clistogamy is the condition of flower in which flowers do not open at all. Flowers do not open at all, कभी नहीं खुलते हैं, यानी कि वो एक बड स्टेज में ही रहते हैं, उसी के अंदर उसके स्टेमन एंड पिस्टिल्स जो है वो मैच्योर होते हैं और वहीं पे उनके अंदर एश्योर ऑटोगेमी होती है. ठीक है. तो क्लिस्टोगेमी जो है वो एक तरह से एश्योर assurance of autogamy. This is a contrivance for the autogamy. These are the flowers which do not open at all, कभी नहीं खुलते हैं, बड स्टेज में ही रहते हैं. तो दिस इज द कंडीशन क्लिस्टोगेमी एंड इट्स अपोजिट इज चेस्मोगेमी. The condition in which flowers open and exposed, having exposed stamen and pistil. Clear? Okay. Now come to the
नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का क्वेश्चन है विंग्ड पोलन ग्रेन्स। विंग्ड पोलन ग्रेन्स winged pollen grains are required in the condition of this is favorable for the wind pollination, winged pollen, ठीक है। You know wind pollination for wind you know pollen grains are light, very small, non-sticky, okay, and may be winged, but this condition is seen in the plants, pinus plants. In majority of flowers pollinated by wind are having light, very small, non-sticky pollen grains, and they have stamens well exposed. Stigma is large and feathery. Okay, so only winged pollens. This is the condition found in pinus. Pollen grains of pinus plants are winged, while these plants are also pollinated by wind. These are pollinated by insects. So answer will be pinus. Pinus plants have pollen grains, winged pollen grains. Okay. Next question. Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स के रूप में पाया जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव द हेल्पफुल? You know, pollen kit is a oily layer, outer layer, which makes them sticky. To make pollen grains it is a oily layer. Outside the exine, the outer layer of pollen grain, exine, and it is covered in some plants, not all plants. The plants which are pollinated by biotic agents, these have pollen kit, like Entomophilus flowers. They have pollen kit oily because these must be sticky to stick the on the body of insects. Sporopollenin, this makes the pollen grains most stable, hard and resistant. So this is the exine, that is outer covering of all pollen grains. This is the
most resistant one of the most resistant organic material. It is resistant to high temperature, pressure, strong alkali and acids. So, this makes the pollen grains, this is the substance which makes the pollen grains most resistant, and this is helpful in the for the pollens to be fossiled. Okay. So, this is the answer. Oil content. Now, cellulosic entine. Entine is the next inner layer of the pollen grains which is made up of cellulose. Okay. This is clear. Okay. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नीट 1 फर्स्ट पार्ट जो नीट का हुआ था 2019 में. परसिस्टेंट न्यूसेलस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. न्यूसेलस जब सीड के अंदर परसिस्टेंट पाई जाती है, कुछ प्लांट्स के सीड्स के अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट इन सीड्स, this is known as perisperm and this is found in example black pepper and beets. These seeds having a persistent remnant of the nucellus. Nucellus, you know, the diploid tissue present in the ovule. Okay, this is nutritive tissue, nucellus. Tissue present in ovule. Okay, and this is persistent when this is persistent in the seeds. This is the perisperm. It is clear. What is tegmen? Tegmen is the inner wall layer of सीड कोट. सीड कोट की यह इनर लेयर है जिसको टैगमेन बोलते हैं. इसकी आउटर जो लेयर है उसको टेस्टा बोलते हैं. ओके, while outer is testa. Chalaja, what is chalaja? This is the opposite end of the ovule. किसके अपोजिट? टू दी माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो एंड है उसको बोलते हैं चेलेजा. ठीक है. हाइलम. व्हाट इज हाइलम? हाइलम ए पॉइंट, ए जंक्शन पॉइंट बिटवीन द फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल. ओके, दिस इज द ओव्यूल.
This is the body of ovule and this is a funicle. So, this attachment point, this is the junction point where it fuses with the body of ovule. This is the funicle. Okay. This attachment point या junction point is the hilum. So, this is clear. I hope this solution will provide you more information about this chapter. Okay. Come to the next question. ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट फर्स्ट की, वही 2019 के नीट फर्स्ट में. इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर फीमेल गैमिट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो यू नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. Formation of embryo without fertilization. Fertilization is known as parthenogenesis. This is known as parthenogenesis. First thing, that is parthenogenesis. Okay. So, this is the correct answer of this question. Now, you know autogamy, this is a type of pollination. A type of pollination which occurs in the same flower. In a bisexual flower, okay, pollen grains of the flower carry to the stigma of the same flower. This is the autogamy. Okay. Next, parthenocarpy. This is the formation of you can say development. Development of fruits without फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट डेवलप होता है, कार्पी मीन्स फ्रूट. यहाँ ये ध्यान रखना है, कार्पी मीन्स फ्रूट. विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन. हियर इज विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन. दोनों कंसेप्ट सेम है. अगर एम्ब्रियो अंदर बनता है सीड के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के, ओके, तो इसको बोलेंगे अपन पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है. फ्रूट डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब है इसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पी. So, this is different condition, while here you are asked about the embryo formation from the female gamete. Okay. If the female gamete, you know, this is the haploid, and now embryo will be haploid. ठीक है. Syngamy, fusion of a male gamete and female gamete. Okay. All the concepts are clear. Okay. Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वही नीट फर्स्ट पार्ट 2019. व्हाट इज द फैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ द मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जी. यू नो द पोलन ट्यूब विच कैरी टू मेल गैमेट्स and discharge them in the synergy. Okay, this is the ovule, you know.
यहाँ ओव्यूल के अंदर 3 सेल्स यहाँ रखी हुई है जिनको एंटीपोडल्स बोलते हैं। यहाँ एग एपैरेटस, this is egg cell, these are 2 synergids. अब देखिए, जब पोलन ग्रेन यहाँ पोलन ट्यूब जो है, अब देखते हैं पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है मोस्टली फ्रॉम द माइक्रोपाइल। दिस एरिया, दिस ओपनिंग इज माइक्रोपाइल। यहाँ से जब एंटर करती है और उसके अंदर 2 गैमिट्स है, उन गैमिट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ से एक गैमिट फ्यूज होता है एक सेल के साथ, ओके। और यहाँ सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस रखे हुए हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। दूसरा गैमिट जो है वो फ्यूज होता है इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इनके फ्यूजन से एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक गैमिट के फ्यूजन से इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यहाँ 3 गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और दिस इज द सिनगेमी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आते हैं क्वेश्चन पे कि मेल गैमिट जो है, 2 मेल गैमिट जो आते हैं उनका क्या फेट है जो सिनर्जिड में डिस्चार्ज किए गए हैं। 1 फ्यूजेज विद एग सेल, सही है। अनदर फ्यूजेज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, तो इस सेंट्रल सेल में रखे हुए जो 2 न्यूक्लियाई है इनके साथ फ्यूज होगा सेकेंड गैमिट। ठीक है, तो एक गैमिट यहाँ जाएगा और दूसरा गैमिट जो एक सेल से फ्यूज होगा। दिस इज सिनगेमी, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन एंड बोथ ऑफ दीज कंबाइंडली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, क्लियर? दिस इज रॉन्ग, दिस इज क्लियर, करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 फ्यूजेज विद एग सेल एंड अदर फ्यूजेज विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, दिस इज द ट्रिपल फ्यूजन एंड दिस इज द सिनगेमी। ठीक है, ओके, क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन नीट फर्स्ट पार्ट ऑफ द 2019 में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली जो इवेंट्स है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या ध्यान देना है? इनकरेक्ट है। ठीक है, देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक। बच्चों आप जानते हो ओव्यूल किस में डेवलप होता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड्स। ओके, तो ओवरी के अंदर जब सीड्स रखे होते हैं, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है और फ्रूट के अंदर क्या निकलते हैं? सीड्स। तो वो सीड्स किससे डेवलप हुए हैं? ओव्यूल से। ठीक है, तो ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड। किस में डेवलप होंगे? सीड्स में डेवलप हो जाएंगे, तो यह गलत है। ठीक है, और यही इनकरेक्ट आंसर अपन को देखना है कि ओव्यूल सीड्स में डेवलप होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, नॉट टू एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये करेक्ट है। ओवरी से, ओवरी की जो वॉल्स होती है वो फ्रूट वॉल्स का फॉर्मेशन करती है और उसी से फ्रूट डेवलप होता है। जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, इज इट क्लियर? ये भी सही है। जायगोट आगे माइटोसिस से एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ठीक है, और सेंट्रल सेल जो होती है
वो डेवलप करती है इनटू, वो डेवलप हो जाती है इनटू एंडोस्पर्म में। ओके, और इसकी जो अपन देखा जाए तो ये क्या है, सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रखे हुए थे, अभी जस्ट मैंने बताया इसे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये कैसा होता है 3n, यहाँ 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है, इसलिए कैसा होता है ट्रिप्लॉइड होता है 3n। ठीक है, ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म। इसकी प्लॉइडी कैसी है, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, और सेंट्रल सेल से ही ये डेवलप होता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का नीट पार्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का मोस्ट कॉमन टाइप किसके अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, देखते हैं एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट जब स्पोर से होता है तो पहले होता है माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी जो सेल होती है जो कि डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, और इसके मियोसिस से, जब मियोसिस होता है डिप्लॉइड सेल के अंदर तो कितने सेल्स बनती है, 4, तो इनको बोलेंगे 4 स्पोर। ठीक है, यहाँ 4 स्पोर जो बनेंगे। ठीक है, इनमें से 4 स्पोर में से एक स्पोर जो ये वाला है जो कि माइक्रोपाइल साइड वाला, साइडेड 1 स्पोर, जो 4 स्पोर बन रहे हैं मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर जो यहाँ बन रहे हैं उनमें से एक मेगा स्पोर आगे डेवलप होगा और 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे या यूँ कहे डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एक सिंगल मेगा स्पोर से जो एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ 2 ऑप्शन के अंदर मोनोस्पोरिक कंडीशन दी हुई है। तो आगे देखते हैं 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। अब ये स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड। अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस। ठीक है, तो इस सिंगल स्पोर से माइटोसिस से जब होगा तो इसके अंदर माइटोसिस होगा, 2 सेल्स बनेंगी, 2 स्पोर बनेंगे। इसके अंदर ये एम्ब्रियो सेक जो डेवलप होगा इसके अंदर एक जाएगा यहाँ पे और एक जाएगा माइटोसिस से इस पोल पे, तो दोनों अपोजिट पोल पे ये दोनों न्यूक्लियस चले जाएंगे। इसके न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन होगा माइटोसिस, तो एक डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फर्स्ट हो गया, उससे 2 हो गए, सेकंड जब हुआ तो यहाँ पर हो गए 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस यहाँ और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड जो होगा है माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस से क्या होगा, यहाँ और यहाँ जब इसके अंदर थर्ड माइटोसिस होगा तो देखिए क्या होता है, 4 न्यूक्लियस यहाँ बन जाएंगे और 4 न्यूक्लियस इसके डेवलपमेंट से माइटोसिस से यहाँ 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इनको एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ आएगा। ठीक है, और ये सेंट्रल सेल के अंदर सेंटर में आ जाएंगे, तो यहाँ पे इन दोनों न्यूक्लियस से सेंट्रल सेल में अवेलेबल होंगे दोनों, और यहाँ रह जाएंगे कितने, 3 न्यूक्लियस यहाँ रहेंगे और 3 न्यूक्लियस यहाँ रहेंगे। ठीक है, इनमें फिर बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और इनसे सेल्स बनेंगी, इन न्यूक्लियस से सेल्स बनेगी, एक सेंट्रल सेल होंगी और यहाँ पे 3 सेल यहाँ बनेंगी और 3 सेल्स यहाँ बनेगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे 3 बार सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन्स भी साथ में होंगे एक स्पोर के आगे डेवलपमेंट के समय, और उससे पूरा एम्ब्रियोसेक डेवलप होगा। तो मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियोसेक होता है इन दी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड, और वो 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन से बनता है एक स्पोर के अंदर। ठीक है, तो क्लियर है सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of pollination takes place in वेलिस्नेरिया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियर, वेलिस्नेरिया
hydrilla and sea grasses like Zostera. Okay, these show pollination by water. Okay, pollination occurs in submerged condition. वाटर के अंदर भी सबमर्ज कंडीशन में होता है या सरफेस पे होता है, ठीक है, ये कंडीशन अपन को यहाँ देखना है। तो वेलिस्नेरिया के अंदर देखा जाता है, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली। बाय वाटर, ठीक है, पॉलिनेशन इज हाइड्रोफिली। This is the hydrophily pollination by water. ठीक है, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला और नेक्स्ट एग्जाम्पल है जोस्टेरा, सी ग्रासेस। ठीक है, अब वाटर के अंदर या वाटर की सरफेस पे पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो सबमर्ज कंडीशन में इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो उनके अंदर फ्लावर जो है मैच्योर होने पर सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है, वाटर है तो फ्लावर्स जो है वो यहाँ पे इनके फ्लावर्स की कंडीशन वाटर की जो सरफेस है उसके ऊपर बाहर निकल के आ जाते हैं फ्लावर्स, ठीक है, यहाँ पूरा, ठीक, वाटर के अंदर कुछ पार्ट उसका डूबा होता है, यहाँ पे स्टिग्मा जो है वो पार्ट सरफेस पे होगा और इनके अंदर जो है मेल फ्लावर्स जो है वहाँ पे सरफेस पे आके और यहाँ रिलीज करते हैं अपने पोलन ग्रेन्स को और ये इनको सरफेस पर रिसीव करते हैं फीमेल फ्लावर ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, तो सबमर्ज कंडीशन में नहीं होते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशन, रॉन्ग, फ्लावर्स एमर्ज अबोव सरफेस के ऊपर बाहर निकले होते हैं फीमेल फ्लावर्स, ओके, और मेल फ्लावर्स जो है मेल प्लांट के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं, उनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं जो यहाँ पे इनको मिल जाएंगे, ठीक है, वाटर सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट के द्वारा होता है क्या? नहीं। फ्लावर्स इमर्ज, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या गलत दिया है? इंसेक्ट, ओके, बाकी ये चीज़ सही है। यहाँ दिया हुआ है इमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पोलन इज कैरिड बाय विंड, यहाँ विंड गलत दिया हुआ है। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू द फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ द वाटर, तो ये ऑप्शन क्लियर है जो तीन ऑप्शंस को पार करने के बाद यहाँ मिला है, और ऊपर वाले ऑप्शंस में भी कुछ ऐसी कंडीशंस दी हुई जो कंफ्यूज कर सकती है। तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको एक सिखा रहा है कुछ कि किस तरह से लास्ट ऑप्शन तक जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखा गया है कि आंसर 4th है, ठीक है, कि मेल फ्लावर्स को कैरी किया जाता है टू द बाय द वाटर करंट, ठीक है, सरफेस तक आएंगे, सरफेस पे जो है वेल एक्सपोज जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, वहाँ पर तो सरफेस पर
वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन हो रहा है, नॉट बाई विंड, नॉट बाई इंसेक्ट, ओके, नॉट इन दी सबमर्ज कंडीशन इनसाइड द वाटर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड। ऑटोगेमी प्रिवेंटेड इफ फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। ओके, जीटोनोगेमी क्या होती है, एक ही प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट फ्लावर्स है और उनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। जीटोनोगेमी में कंडीशन क्या है, एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के ऊपर जो है दो देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं एक बार और। तो डिफरेंट फ्लावर्स मान लीजिए ये एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, ठीक है, दोनों सेम प्लांट पर उपस्थित है, इसके जो पोलन ग्रेन्स है वो वहाँ कैरिड किए जाते हैं, तो ये कंडीशन होती है जीटोनोगेमी की। ओके, pollination between two different flowers on the same plant, okay, this is the condition जीटोनोगेमी। ये कंडीशन कब रोकी जा सकती है कि अगर फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर है। यहाँ फीमेल फ्लावर इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर है मेल फ्लावर इस प्लांट के ऊपर, कहीं भी देख लीजिए, ये स्टेमेंस है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर, दिस इज ए डायोसियस कंडीशन। डायोसियस कंडीशन के अंदर, और यह है मोनोइसियस कंडीशन। दोनों ही मेल फीमेल प्लांट्स फ्लावर्स जो एक ही प्लांट के ऊपर है, तो मोनोइसियस प्लांट, ठीक है। ऑटोगेमी की को कब देखा जाता है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स का जो है वहाँ पर पिस्टिल तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ओनली इन बाइसेक्सुअल flowers on a plant, किसी प्लांट के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगेमी, ठीक है। देखते हैं किसके अंदर ये प्रिवेंटेड है, किस कंडीशन में प्रिवेंटेड है। देखिए, वीट का जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि इनके अंदर विंड पॉलिनेशन से अदर्स जो फ्लावर्स है वहाँ से पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स आते हैं, ठीक है। पपाया जो है वो कैसा प्लांट है, डायोसियस प्लांट। पपाया कैसा है, इस पर या तो मेल डायोसियस प्लांट है, डायोसियस प्लांट के अंदर जेनोगेमी होगी लेकिन ऑटोगेमी भी नहीं होंगी और जीटोनोगेमी भी नहीं होगी, क्योंकि सेम प्लांट पर दोनों तरह के फ्लावर्स नहीं हैं, ठीक है। तो आंसर होगा डायोसियस कंडीशन वाला। कैस्टर में और मेज में इनके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाइसेक्सुअल, दिस इज द मोनोइसियस। मोनोइसियस प्लांट है, तो यहाँ पे जीटोनोगेमी यहाँ पे ऑटोगेमी नहीं होंगी, लेकिन जीटोनोगेमी
होंगी। ठीक है, दोनों तरह के फ्लावर्स एक ही प्लांट के ऊपर उपस्थित है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे मेल फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट के अंदर उपस्थित है। ठीक है, यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, कैस्टर के अंदर भी क्या है, मोनोइशियस कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, तो पपाया के अंदर क्या है, डायोसियस कंडीशन है, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे है, तो वहाँ पे ऑटोगेमी भी नहीं होंगी और जीटोनोगेमी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आंसर इज सेकंड आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया हुआ है 2020 के नीट पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, देखते हैं प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस। कौन से प्लांट पार्ट्स के अंदर 2 जनरेशंस है, वन विद इन दी अदर, एक के अंदर दूसरी जनरेशन, यानी कि एक हैप्लॉइड और दूसरी डिप्लॉइड। ठीक है, उस कंडीशन को बोलेंगे वन जनरेशन इन अनदर, 2 जनरेशंस। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इनसाइड द एंथर। पूछा गया विच पार्ट, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस, 2 जनरेशन से मिलकर बना हुआ प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट कौन हो गया यहाँ पे, एंथर। ठीक है, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमिट्स। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। ठीक है, अब देखिए पोलन ग्रेन क्या है, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन मतलब पोलन ग्रेन भी क्या है, हैप्लॉइड है, उनके अंदर मेल गैमिट्स वो भी क्या है, हैप्लॉइड है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ क्या है, पोलन ग्रेन जो रखे हुए हैं और ये एंथर कैसा होता है, 2n, तो ये सही है। देखते हैं नेक्स्ट, सीड रखा हुआ है इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, दोनों ही क्या है, ये भी 2n है और ये भी डिप्लॉइड 2n कंडीशन है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। एम्ब्रियो सेक इनसाइड दी ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर जब एम्ब्रियो सेक डेवलप हो गया तो वो कंडीशन होगी, ओव्यूल तो जनरली 2n है ओव्यूल के टिश्यूज, और ये क्या हो गया n, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शन सही है देखते हैं अपन, A एंड D। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेबल है, 2n के अंदर हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स रहते हैं और ओव्यूल जो है 2n है उसके अंदर एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर जो पोलन ग्रेन है वो एट मैच्योरिटी क्या है, ये मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जब ये जर्मिनेट होता है पोलन ग्रेन तब ये जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, मेल गैमिट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट जो मैच्योर होने के बाद मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे इसको, और ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमिट्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि ये 2 गैमिट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिंपल देखिए पोलन ग्रेन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक बड़ी सेल होती है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक यहाँ छोटी सी जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल, दिस इज द पोलन ग्रेन। ओके, यह है पोलन ग्रेन। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ लगभग 60% प्लांट्स के अंदर 2 सेल्ड पोलन ग्रेन आर सेड। 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन्स को सेड कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन क्लियर है आपके अंदर। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ क्लियर हो रही है, तो ऑप्शन हुआ 3rd। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल
ये पहले भी मैं क्लियर कर चुका, ठीक है। ओव्यूल की जो बॉडी होती है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो पूरी बॉडी है ओव्यूल की, ओव्यूल फ्यूनिकल और बॉडी इन दोनों से मिलकर पूरा ओव्यूल जो बना हुआ है, उसके साथ में ये फ्यूनिकल यहाँ कहीं भी इससे आके अटैच हो रहा है, तो ये जो अटैचमेंट पॉइंट है, ठीक है, ये है हाइलम, ठीक है। तो द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट मतलब कहाँ पर फ्यूज होती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल, तो इनका जंक्शन पॉइंट, इनका अटैचमेंट पॉइंट फ्यूनिकल का और ओव्यूल बॉडी का, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम, ठीक है। दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस पोर्शन इज, दिस ओपनिंग इज माइक्रोपाइल, ठीक है। यहाँ ओव्यूल के अंदर जो है टिश्यू भरा हुआ है वो है न्यूसेलस, ठीक है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है न्यूसेलस, जिसमें से एम्ब्रियो सेक डेवलप हुआ है, तो ये न्यूसेलस यहाँ अभी है। और अगर ये एम्ब्रियो सेक डेवलप हो गया है यहाँ पे, तो ये कंडीशन 3 सेल्स, ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रिटिव टिश्यू है न्यूसेलस। तो ये जो एम्ब्रियो सेक के बाहर जो टिश्यू होगा वो होगा न्यूसेलस, न्यूट्रिटिव टिश्यू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो सेक, ओके। चले जा, दिस इज द एंड अपोजिट टू दी माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के अपोजिट जो पोर्शन है, जो पोल है, एंड है किसका, ओव्यूल बॉडी का, ठीक है, वो है चले जा, ठीक है, चले जा माइक्रोपाइल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये इससे आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होता है इससे, ठीक है, यानी कि ये फिर पूरा जो है एक तरह से देखा जाए तो फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है। ये किसके अंदर रखा हुआ है, देखिए, यह जो ओव्यूल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ, यह सब किसके अंदर रखा हुआ है, ओवरी के अंदर, ठीक है। ये चलते हैं अपन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो ये ओव्यूल जो है कहाँ रखा हुआ है, नीचे प्लेसेंटा पे लगा हुआ है, ये जो पोर्शन है फूला हुआ जिसके ऊपर प्लेसेंटा पे ये लगा हुआ है फ्यूनिकल, तो ये प्लेसेंटा है जिससे अटैच होता है ओव्यूल, ठीक है। ये सब ओवरी के अंदर रखा है, इससे ओव्यूल से डेवलप होगा सीड और इससे डेवलप होगा फ्रूट, फ्रूट के अंदर रखे होते हैं सीड्स, क्लियर, ठीक है। जितने ओव्यूल होंगे फ्रूट के अंदर, इस ओवरी के अंदर जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही सीड होते हैं। तो आप देखते हैं कुछ फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा सीड्स निकलते हैं, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही सीड होता है, ओके, जैसे मैंगो है, ठीक है, वहाँ एक ओवरी और उसके एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है, तो एक ही सीड डेवलप होता है मैंगो के अंदर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नीट 2020 का नीट पार्ट 2 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है फॉर द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर प्लांट्स के लिए कौन सी कंडीशन जो है गलत है, इनकरेक्ट है, देखते हैं। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड स्टिग्मा, स्टेमन और स्टिग्मा वेल एक्सपोज होंगे तो स्टेमन से जो पोलन ग्रेन्स को है वो एयर करंट्स में आसानी से लिया जाएगा, एयर करंट में आसानी से रिलीज किए जाएंगे, और स्टिग्मा भी वेल एक्सपोज होगी तो उनको आसानी से ट्रैप कर पाएगी, तो ये कंडीशन तो करेक्ट है, ठीक है। अपन को देखना है इनकरेक्ट वाला, मैनी ओव्यूल्स, ठीक है,
तो यहाँ गलत है, मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। तो यह कंडीशन पहले अपन देख चुके हैं कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव वन सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है गलत है, यानी कि अपना आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फ्लावर्स आर स्मॉल, सही है। ठीक है, एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर होना भी आवश्यक नहीं है। एबायोटिक कंडीशन में विंड और वाटर के द्वारा जो पोलिनेटेड फ्लावर्स है उनको कलरफुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बायोटिक जो एजेंट्स जिनके थ्रू होता है, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन, तो वहाँ उसकी जरूरत होती है ब्राइटली कलर्ड होना। ठीक है, यहाँ ये सही है, नॉट ब्राइटली कलर और स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, हल्के होंगे ताकि एयर करंट के अंदर आसानी से दूर तक ले जाए जा सके, और नॉन स्टिकी होंगे। ठीक है, चिपचिपे नहीं होने चाहिए ताकि कहीं रुके नहीं, एयर करंट के अंदर दूर तक जा सके। ठीक है, तो ये भी सही है। तो तीनों कंडीशन सही है, कौन सी गलत है? ये। तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है किसके लिए? विंड पोलिनेटेड प्लांट्स के लिए। क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के नीट में। ठीक है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो सेक होता है वो जनरली मैच्योर होने पर किस कंडीशन में कैसा होता है, कितनी सेल्स कितने न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, सेल्स कम है, क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, सेल्स कम और न्यूक्लियस ज़्यादा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। 7 8 कौन है? ठीक है, तो 7 मतलब 8 न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे, सेल्स कम होगी, 7 सेल्स होंगी। ठीक है, ये कंडीशन देखा हुआ है अपने। 3 न्यूक्लियस, 3 सेल यहाँ हैं और 3 सेल्स जो है यहाँ रखी हुई है। ठीक है, ये जो सेल है न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पूरा क्या है? एग एपैरेटस, ये एंटीपोडल्स है। इन तीनों सेल्स को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, यहाँ सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस साथ में रखे हुए हैं, पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इन सेंट्रल सेल। ठीक है, 3 सेल ये है, 3 सेल है 6 और एक है सेंट्रल सेल। ठीक है, तो ये जो सेल है ठीक है, ये जो सेल है एक सेंट्रल सेल। ठीक है, ये सेंट्रल सेल। ठीक है, 3 सेल यहाँ है, एक सेल ये है और 3 सेल ये है जिसमें एग सेल और ये दोनों 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, सेल्स बता रहे हैं 2 3 4 और 3। ठीक है, तो 7 सेल्स एंड न्यूक्लियस देखते हैं 3 2 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट, देखिए, वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। जब 2 डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होता है तो वो होता है जेनोगेमी। ठीक है, सेम फ्लावर के ऊपर होता है तो जीटोनोगेमी। ठीक है, और एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर होता है पॉलिनेशन तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, और एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच होता है तो जीटोनोगेमी। लेकिन 2 डिफरेंट फ्लावर प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स है उनमें अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं जेनोगेमी, जो कि जेनेटिकली 2 डिफरेंट जो है पोलन ग्रेन्स को लेकर के जाएगा
दूसरे प्लांट पे। ठीक है, जिटोनोगेमी में क्या होता है, जेनेटिक्स पूरे प्लांट की एक है, उसी के 2 फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होता है, तो जेनेटिकली वो क्या है, एक तरह से ऑटोगेमी ही है। ठीक है, जिटोनोगेमी एक तरह से ऑटोगेमी ही है, किसके बेसिस पे, जेनेटिक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट, तो यहाँ आ गया जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स को लेके आएगा दूसरे प्लांट से एक दूसरे प्लांट तक। ठीक है, तो वो कंडीशन देखी जाती है हमें जेनोगेमी के अंदर। ठीक है, जिटोनोगेमी के अंदर ऑन सेम प्लांट, है ना, बिटवीन, यहाँ कहें बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। यहाँ इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है, सेम प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर्स है, उनके बीच में होता है, तो यहाँ जेनेटिकली डिफरेंट नहीं हुआ पोलन ग्रेन्स का, और स्टिग्मा जिस पे फ्लावर जो प्राप्त कर रहा है उनको पोलन ग्रेन्स को, उनकी जेनेटिक्स सेम है। ठीक है, चेज़्मोगेमी कंडीशन क्या है, ओपन फ्लावर, फ्लावर इज चेज़्मोगेमस फ्लावर। चेज़्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, कंडीशन ऑफ द फ्लावर, और दिस इज द क्लोज्ड कंडीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर रिमेन क्लोज्ड या बड कंडीशन, है ना, डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी खुलता नहीं है, अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होंगे और वहीं पे पॉलिनेशन हो जाएगा एक ही फ्लावर के अंदर। तो जेनेटिक्स यहाँ भी चेंज नहीं हुई, उसी के अंदर ऑटोगेमी को एश्योर करता है, ये क्लिस्टोगेमी ऑटोगेमी के लिए फेवरेबल है। ठीक है, जेनोगेमी के अंदर 2 डिफरेंट प्लांट्स के अंदर होता है, तो जेनोगेमी जो होती है बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, और 2 डिफरेंट प्लांट्स हो गए, इसका मतलब जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर ग्रेन एक प्लांट का, वो दूसरे फ्लावर प्लांट जो दूसरे प्लांट पे फ्लावर है वहाँ तक आएगा। ठीक है, तो जेनेटिक्स यहाँ चेंज होती है। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन आएगा, तो ये क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज, कौन सी फैमिलीज है, ठीक है, पेयर ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज, कई महीनों तक किनके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद भी वो वायबल रहेंगे लंबे टाइम तक। ठीक है, देखते हैं सीरियल प्लांट्स के अंदर तो ये बहुत कम वायबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पोएसी प्लांट जो अपने जो ग्रासेज वगैरह है, ठीक है, उनके अंदर, और लेग्यूमिनेसी के अंदर वायबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स है उनके अंदर ज़्यादा इनके पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कई महीनों तक होती है। ठीक है, जबकि पोएसी जो है मोनोकोट फैमिली है, पोएसी है ना, मोनोकोट प्लांट्स की एक फैमिली है। जहाँ भी पोएसी का ऑप्शन आ रहा है तो वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत कम जो है वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की रिलीज होने के बाद। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड आंसर, रोजेसी फैमिली एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर के पोलन ग्रेन्स जो है ज़्यादा वायबिलिटी रखते हैं। तो क्लियर, इसमें 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं किस चैप्टर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये इस तरह से आपको बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दी नीट, आने वाला जो पेपर है नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।